Namaste. I am Shubhi Vishwakarma and I'm currently standing at the protest site in Ranchi where students are protesting against the Jharkhand Mukti Morcha government and their discrepancies in examinations conducted by the state government, be it Jharkhand PSC, Jharkhand SSC or multiple state government conducted examinations. There are students from all walks of multiple subjects are here. They are assembled here and under this one makeshift roof. There is no broader arrangements for the protesters over here. There are no washrooms. There's no arrangement for them to sleep on. You can see behind me that it's raining incessantly since evening, and they also held a Tiranga march under rain. And now they are sitting here, and a delegation is currently meeting the chief minister, and they're trying to put their demands out in front of him and see if he agrees to it. And the interesting fact here is Hemant Soren lives merely 2 kilometers from here, and he has no time for the students to come and even speak to them. Behind me, you can see that 4 protesters are lined. They are holding indefinite hunger strike. I will speak to them and understand what made them to take this giant step and why they are doing so. I mean, there are students here who have bunked library, who are missing their libraries and who are missing their study sessions and coachings just to raise their voice and get what they want. What is the meaning of taking any examination if it is supposed to get leaked by the end of it? It's been 26 years since Jharkhand has been made, and merely 14 JPSC examinations have been conducted, and all of them have irregularities in them. So there's so many things. Every now and then a paper gets leaked. There are irregularities get reported in Jharkhand. It's very common. But you will not find any political parties coming here and supporting these students. No one from any political background is here. They are just students who are demanding transparency in the examination system. So let's speak to them and understand why they are here, what they want. जी, क्या नाम है आपका? हबीबा। ओके, कब से यहाँ धरने पर बैठी हैं? जी, यहाँ तो मैं लगातार 29 से हूँ। धरना जो प्रदर्शन हो रहा है तब से ही हूँ। क्यों बैठी हैं यहाँ पर? यहाँ पे 26 सालों से युवा प्रस्त है। बहुत सारी यहाँ पे जो जेएसएससी और जेपीएससी में बड़ी मात्रा में यहाँ पे धांधलियाँ हुई है। शुरू से जेपीएससी में अनियमितताएं थी, लेकिन हमें ये नहीं पता थी कि इतनी ज्यादा है। यहाँ पे इतनी ज्यादा अनियमितताएं यहाँ पे फैली हुई है कि ओएमआर सीट के साथ हेरा फेरी की जाती है। क्वेश्चन पेपर लीक का सिर्फ मामला नहीं है, यहाँ पे सीटों को बेचा जाता है। तो हम लोग सभी चाहते हैं जिसमें भी गड़बड़ियां हैं, जो अभय तिवारी जिन जिन एग्जाम में संलिप्त है, और जो टीडीपीएल एजेंसी जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, वो उन्होंने जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं, सारे एग्जाम्स को हम चाहते हैं कि उसे रद्द किया जाए, और रद्द करने के बाद एक टाइम पीरियड सेट किया जाए कि हाँ रद्द हो गया, लेकिन हम लोग जब एग्जाम लेंगे इसमें तो 6 महीने के अंदर लेंगे, ये नहीं कि 3-4 साल आप उसे डिले कर दें। अभी यहाँ पर आप बैठी हुई हैं, आप महिला हैं और इतने सारे मतलब ये यहाँ पे कोई खास अरेंजमेंट नहीं है। ये टेंट भी अभी लगा है, कुछ दिन पहले। जी, कुछ दिन पहले ही लगा गया। यहाँ पर कोई अरेंजमेंट नहीं थी, अभी बस कुछ अरेंजमेंट अभी हुई है। तो एक महिला के नाते ये सारी चीजें फेस करना बहुत बड़ी बात है, खास करके जब हम लोग एक ऐसे समाज से आते हैं जहाँ पे हमेशा ताना सुनना पड़ता हो पढ़ने के लिए बच्चों को। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अगर मैया को सम्मान देना चाहते हैं तो हमारी मेहनत का मान दे दीजिए, हमारी मेहनत का हक अदा कर दीजिए। मतलब यहाँ पर बेसिक अरेंजमेंट जैसे वॉशरूम, ये सब की क्या व्यवस्था है? जी, ये सब की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन जब हम लोग कल से जब अनशन कर रहे हैं तो कल रात को भी व्यवस्था कुछ भी नहीं थी, आज दिन में व्यवस्था की गई है। अच्छा, घर वालों की तरफ से किस तरीके का समर्थन है, विरोध है, क्या है? घर वालों को नहीं पता कि मैं अनशन में बैठी हूँ, उन्हें कुछ नहीं पता। अभी मैंने उनसे बात भी नहीं की है, कल से मैंने अभी तक बात नहीं की है उनसे। इतना बड़ा स्टेप घर वालों की बिना परमिशन के कैसे आपने? जी, अगर मैं इजाजत लेती तो मुझे ये करने नहीं मिलता ना, इसलिए मैंने इजाजत ही नहीं ली और मैं बात भी नहीं कर रही हूँ। एक तरह से देखा तो मैं छुप रही हूँ उनसे, बातचीत नहीं कर पा रही हूँ उनसे, नहीं कर रही हूँ खुद से ही। क्या नाम है भैया आपका? रुपेश कुमार पाल। रुपेश जी, यहाँ पर धरने पे क्यों बैठे हैं? आपने एग्जाम्स दिए हैं, एस्पिरेंट रहे हैं, क्या हुआ है आपके साथ? मैम, हम लोग आज प्रोटेस्ट के 12 दिन हो गए। 10 दिन से हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और कल से हम लोग भूख हड़ताल पे आए हुए। मैम, आज 12 दिन हुए फिर भी सरकार तक आज तक सरकारी कानून आवाज नहीं गई है, क्योंकि अगर सरकार के कानून में आवाज जाती तो सरकार के
कोई न कोई प्रतिनिधि मंडल हमसे जरूर मिलने आते हैं। और सरकार का माननीय हेमंत सोरेन का आवास माननीय मुख्यमंत्री जी का यहीं पे बगल में आवास है, 2 से 2.5 किलोमीटर समथिंग दूर होगा, लेकिन फिर भी वो अभी तक हम लोग से मिलने नहीं आए हैं। आप सोच सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि हम लोग जैसे सीजीएल और जेपीएससी में इतनी बड़ी धांधली हुई है, इसको लेकर हमने आवाज जैसे सीजीएल में उठाए थे। जैसे सीजीएल में आवाज हम लोग जब उठाए थे, सरकार के बहुत सारे क्या बोलते हैं सीआईडी तंत्र मिलाकर हम लोग की आवाज को दबाया गया। हम लोग ने जब जैसे सीजीएल एग्जाम दिया, तो एग्जाम देकर जब बाहर निकला तो पता चला कि पेपर लीक है। तो हम लोग अगले दिन हम लोग जैसे कार्यालय के पास कार्यालय गए कि पेपर लीक है, मानिए तो आप इस पे कुछ संज्ञान लीजिए। एक रेट कार्ड सा चला है मार्केट में कि इतने पैसे में ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ सुनने में आपको हाँ, ऐसा है। क्या होता है ये? जैसे सीजीएल में साहब यहाँ पूरा ओपनली चल रहा था। किस तरीके 30 से, लाख क्या क्या 35 रेट? लाख, आप 30 लाख 35 लाख मतलब 25 प्लस से स्टार्टिंग था, 25 30 35 ऐसा। रैंक के बेसिस पे? हाँ, आप बीएसओ लेना चाहते हैं, एसओ बनना चाहते हैं, 30 लाख 35 लाख दीजिए, आपको एसओ पोस्ट मिलेगा। 80 से 85% पूरी की पूरी खाली पैसा में बिकी है। आपके पास फोन आया कभी पैसे के लिए? नहीं, पैसे के लिए मेरे पास फोन नहीं आता, क्योंकि हम ऐसा पहले अफवाह जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, जैसे सीजन के जब एग्जाम के डेट आ गए थे, हम लोग जब पढ़ते थे, ऐसा लोग चर्चा होता था कि सेटिंग हो रहा है। हमको लगा कि ये अफवाह हैं, क्योंकि सरकार तो बोलती थी कि हम एग्जाम पूरे पारदर्शिता कराएंगे, इसमें कोई धांधली का नाम ही नहीं है। हाँ। क्योंकि एग्जाम जिस दिन था उस दिन नेट बंद कर दिया गया था। नेट ऑफ रहेगा, नेट जब ऑफ रहेगा तो न्यूज वायरल नहीं होगा, लड़का लोग तुरंत मतलब एक्टिव नहीं होगा, इसलिए नेट को ऑफ किया गया था। जब हम लोग एग्जाम देके निकले सेंटर से, तो पता चला कि अगले दिन की पेपर लीक था, पहले से पेपर लीक था। वो क्वेश्चन कुछ लोगों के पास क्वेश्चन मिला, पर क्वेश्चन पढ़ते हुए क्वेश्चन, हाँ। वो हम लोग सारे साक्ष्य हाईकोर्ट के में पेश किए। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। सरकार सीआईडी टीम गठित करती है, वो सीआईडी टीम अच्छे ढंग से जांच कर रहे थे। हम लोग को उम्मीद लगा कि जांच जब अच्छे ढंग से हो रही है तो जो सच्चाई है वो सामने आएगा, बट सरकार को लगा कि नहीं, जब सच्चाई सामने आएगा तो उसमें सरकार की संलिप्तता है, तो सरकार इसमें फंस सकती है। उस टीम को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया, उस टीम को हटाकर सीआईडी टीम 2 गठित किया गया। और सीआईडी टीम 2 जब आता है मैम, वो सिर्फ सरकार के इशारों पर काम करता है, जैसे जैसे सरकार बोलती है सिर्फ वैसे करता है। जो हम लोग ने साक्ष्य हाईकोर्ट में पेश किया, सरकार के पूरी जितनी उसकी ताकत थी सब लगा दे हम लोग को हराने के लिए। वहाँ बोला गया कि नहीं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये सब कोचिंग माफिया का मनगढ़ंत बातें हैं, लड़कों को भड़काया जा रहा है कोचिंग माफिया द्वारा। हम लोग किसी कोचिंग माफिया में क्यों आएंगे? हम लोग 12 से 15 घंटा 16 घंटा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं। हम लोग किसी के बहकावे में आएंगे? हम लोग किसी से क्या मतलब है? हम लोग सिर्फ एक सीट को तो मतलब था, हम लोग को तो सब सीट चाहिए नहीं था। बट यहाँ मैम सरकार के नियम था कि नहीं, सीट को बेचना है। और मैम जब से सीट झारखंड सीजन में बिका है, उसके बाद से मैम सरकार तो ओपन बोले ओपन सेटिंग हो रहा था। आपके पास पैसा है, आप आइए, आपको नौकरी मिलेगा, टर्म बाय टर्म। सरकार इससे क्या दिखाती है? आप क्या दिखाते हैं? जिसके पास पैसा है आप आओ। जैसे ही कुछ लोग जाते हैं पैसा लेकर, जैसे 400-500 जैसे होते हैं, सरकार नियुक्ति पत्र बांटने का आह्वान करती है। और माननीय हेमंत सोरेन खुद नियुक्ति पत्र देते हैं। सरकार के भी जब से जेपीएससी में आवाज उठा, जेपीएससी में जब ओएमआर सीट जब मीडिया साइट पे जब वायरल लगा मैम, तब सरकार को लगा कि नहीं, अब तो लगता है कि सच्चाई सामने आएगा। एल फेंकते बिना जांच हुए तो अपने से खुद से वो इस्तीफा दे दिए, क्योंकि उनको पता चल गया कि अब तो सच्चाई सामने आ गया है, मीडिया में आ गया है, तो छात्र छोड़ेंगे नहीं, तो खुद इस्तीफा दिए। और जब वो इस्तीफा दिए तो उनसे टीम जब लड़का लोग छात्र जब रोड पे आ गए सब, विधानसभा में भी विपक्ष को आवाज उठाने लगे। तो सरकार को लगा कि सीआईडी टीम गठित करना चाहिए। सीआईडी टीम गठित हुई, अभी भी जांच चल रही है। सीआईडी टीम गठित हुई, जेपीसी के चेयरमैन एल खैंगते से पूछताछ भी किया गया। उसमें कुछ सामने आया, जिसमें अभय तिवारी टीडीपीएल कंपनी का
मार्केटिंग मैनेजर है वो, तो पाए गए तो जेपीएससी का एग्जाम कंडक्ट हुआ था और खुद वो जैसे सीजीएल में सेकंड टॉपर हैं, वो अपने बहुत सारे फैमिली को भी इसमें करवाया था झारखंड स्टेट जेल में। तो जब अभय तिवारी पकड़ा तो पता चला कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, करोड़ों करोड़ों के हुआ है धन का यहाँ पे, एक सीट के लिए करोड़ों। सोच सकते हैं कि यहाँ झारखंड सरकार छात्रों के साथ में क्या खिलवाड़ कर रही है। तमाम छात्र जो भी है ये झारखंड सरकार से नाराज है। अगर ये इनका रवैया रहता है, अगर ये सीबीआई को केस हैंडल ओवर नहीं करते हैं, सीआईडी कुछ नहीं कर पाएगी। सीआईडी सरकार के चंगुल क्योंकि में मीडिया में जो भी आया है सीआईडी सिर्फ उन्हीं लोग पे छापा मार रही है। सीआईडी अगर सच में अगर निष्पक्ष काम करती मैम, तो जो सीजीएल में जब हुआ था धांधली उसी समय हो जाता फाइनल। बट सरकार ये नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार के इसमें हाथ है। इसलिए हम लोग सरकार से डिमांड करते हैं कि आप ये जितने भी धांधली हुई जैसे सीजीएल और जेपीएससी में टीडीपीएल एजेंसी के तहत जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए, और जो अभय तिवारी है मार्केटिंग मैनेजर, वो जिन एग्जाम में क्वालिफाइड है, जिन में एग्जाम उनका संलिप्त है, सारे एग्जाम को तत्काल कैंसिल किया जाए और सीबीआई टीम को जांच का निर्देश दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता कुमारी है और मैं रांची से ही हूँ और मैं 2019 से जेएसएससी और जेपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। अभी तक से पीटी नहीं निकला था, इस बार निकलने का चांस था, लेकिन जिस तरह अंदर से जो पेपर को हम लोग को रंगा गया है, ओमार सीट को अंदर से रंगा जा रहा है, वो रीजन की वजह से मेरा इस बार पीटी भी नहीं हो सका। मैं इस बार पीटी के लिए जी जान लगा के मेहनत की थी और मेरा पीटी नहीं हो पाया। आमरण अनशन पर आप बैठ गई हैं, आप एक महिला हैं, घर वालों के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। इस अनशन में घर वालों से किस तरीके का सहयोग है या कोई विरोध है? घर वालों को बताया है, नहीं बताया? मेरा घर वाला कोई विरोध नहीं कर रहा है। वो देखा है मेरा संघर्ष, इसलिए वो मेरा विरोध नहीं कर रहा है। वो जानता है हम किस तरह से पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँची हूँ, किस तरह घर से लड़ाई झगड़ा करके हम पढ़ाई के लिए बाहर निकले थे। अगर आज हमको वही नहीं मिल रहा है तो मेरा जीने का क्या मकसद रह जाएगा? कोई मकसद नहीं है। हम बिना जॉब लिए तो यहाँ से जाने वाले भी नहीं है, यहाँ तक कि माँ बाप से मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ रहे हैं। जी जी जी। हम किस मुंह से माँ बाप के पास जाएंगे? बच्चों के साथ इतनी सारी यहाँ पर मतभेद होते हैं, उनके साथ बार बार पेपर लीक जैसी घटनाएं घटित होती हैं। सरकार का किस तरीके से रवैया देखती है? सरकार का रवैया का तो नहीं पता। अगले बार जब सीजीएल का जब एग्जाम पेपर लीक हुआ था तो हम लोग आवाज उठाए थे, यहाँ तक कि हजारीबाग हो गया, नेपाल हो गया, पटना हो गया, यहाँ पे बच्चा को रातों रात रटवाया गया था और हम लोग को पता भी चला था। हम लोग उसके लिए मांग भी किए थे रद्द का, लेकिन सरकार ने उस एग्जाम को क्लीन चिट देकर उनको ज्वाइनिंग करवा दिया। सीबीआई से जांच करवाया, लेकिन हम लोग को कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया। हाई कोर्ट से कोई जवाबदेही सुनिश्चित नहीं किए गए। इसीलिए हम लोग मजबूरी में इस बार सीआईडी की जांच नहीं मांग के सीबीआई की जांच मांग रहे हैं, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। और ईडी की जांच इसलिए मांग रहे हैं ताकि जो पैसों की लेन देन हुई है वो पारदर्शिता हो सके, जवाबदेहिता हो सके, ये पता चल सके को कौन कौन पैसा दिया है। पैसा का क्या है? यहाँ पे पैसा चलता है क्या एग्जाम में? मैम यहाँ तो पैसे ही, जिस तरह और जगह में पेपर भले लीक होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो सीटें बेचे जा रही है। अच्छा, क्या रेट बंधा हुआ है? सब सीट का, सब वैकेंसी का अलग अलग रेट होता है। जैसे सीजीएल का रेट था 25 लाख से लेकर 35-40 लाख तक था, और जो उत्पाद सिपाही का जो रेट है, जिसमें 19 बच्चा को, बताइए 19 बच्चा का मौत हो गया, उस सीट को बेचा गया 10 से 12 लाख में बेचा गया है। अभी जो फील्ड वर्क का क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जो कि जमीन गांव देहात में जाके काम करना, उस पोस्ट के लिए 15 से 18 लाख में बेचा गया है। और जो अभी जेपीएससी का जो वैकेंसी है, ये 14 जेपीएससी, उसमें डीएसपी पोस्ट के लिए 1 करोड़ 20 लाख है। सीओ वीडियो के लिए 70 से 80 लाख है। बताइए हम गरीब बच्चे कहाँ से ला के उसको देंगे? क्या हम अपना जगह जमीन बेच के उसको पैसा देंगे? अगर हम अपना जगह जमीन बेच के अपना सीटें खरीदेंगे एक पर्सनली अपने लिए, तो हमारा आगे वाला भविष्य क्या करेगा? वो का भीख मांगेगा, बड़े घर में बर्तन धोएगा। और पढ़ने लिखने का फिर क्या मतलब है? पढ़ने लिखने का क्या मतलब? आप स्कूल कॉलेज बंद करवा दीजिए, नहीं पढ़ेगा बच्चा, उम्मीदें नहीं रहेगा कि हम एक दिन जॉब कर सकते हैं, पढ़ाई करके कुछ बन सकते हैं। क्यों हम लोग को पढ़ा रहे हैं? क्यों हम लोग का टाइम बर्बाद कर रहे हैं? हम लोग को नौकर जैसे खटवाइए, नौकर बना दीजिए। हाँ, यहाँ का मूलवासियों को सबको नौकर बना दीजिए और सारा सीट बाहरियों को बेच दीजिए।
सही बात है। बाहर और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस है और कोई दूसरी पार्टियां हैं, उनसे किस तरीके का समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? सभी लोग से नैतिक समर्थन लिया जा रहा है। सभी लोग आके थोड़ा थोड़ा मिलने का कोशिश कर रहे हैं, बात करने का कोशिश कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं।